السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ قومی قیادت نے ملک کی خود مختاری کے دفاع کے عزم کو دہرا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں داخلی اور بیرونی سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سروسز چیفز اور DGISI نے بھی شرکت کی۔ ملک کی سالمیت اور خود مختاری سب سے مقدم، وطن عزیز کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا، سیاسی اور عسکری قیادت نے عزم کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران قومی قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کی خود مختاری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر دفاع پرویز خٹک، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور DGISPR بھی شریک ہوئے۔ سندھ حکومت نے عزیر بلوچ، نثار مورائی اور سانحہ بلدیہ ٹاؤن کی JIT رپورٹس پیر کے روز پبلک کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں رپورٹ سندھ حکومت کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ علی زیدی کے الزامات مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کی JIT پر تمام اداروں کے افسران کے دستخط موجود ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی قیادت کا نام نہیں۔ عزیر بلوچ کی JIT کے حوالے سے، نثار مورائی کی JIT کے حوالے سے، بلدیہ ٹاؤن کی JIT کے حوالے سے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ عدالت کے اندر سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت میں قانونی چارہ جوئی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ صرف جھوٹ بولنے پر، غلط بیانی کرنے پر بلیو کرتے ہیں کیونکہ سیاست ان کی ہے یہی۔ کہا عزیر بلوچ کو احکامات سابق صدر آصف علی زرداری صاحب دیتے تھے۔ آج سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ تینوں JITs سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے۔ پیر کی روز انشاءاللہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان تمام JITs کی کاپیز کو اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ جو شخص کاغذ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے، مطالعہ کرے اور پھر ان لوگوں سے سوال پوچھے کہ کیوں غلط بیانی کرتے تھے۔ کالعدم پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر جان بلوچ کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس میں ہر شعبے، ہر علاقے کے لوگوں کا قتل، ڈکیتی، رہزنی اور دہشت گردی جیسی وارداتیں شامل ہیں۔ عزیر بلوچ کراچی کے علاقے لیاری میں 11 جنوری 1989 کو پیدا ہوا۔ یہ علاقہ فٹ بال، باکسنگ اور مارشل آرٹس جیسے کھیلوں کے لیے مشہور ہے، تو وہیں منشیات، اسلحہ، غیر قانونی تجارت یا سمگلنگ کا شہر میں سب سے بڑا مرکز بھی ہے۔ یہ علاقہ کبھی رحمان بلوچ کے گینگ کا گڑھ تھا، لیکن پھر عزیر نے اس کو اپنے نام سے بدل دیا۔ اس تبدیلی نے ہزاروں جانیں لے لی۔ لیاری کے باسیوں نے یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ عزیر بلوچ نے اپنے ہی ایک ساتھی کی مدد سے سیاسی حلقوں میں اپنا اثر رسوخ بنایا، اور پھر کیا تھا، اہم سیاسی شخصیات تک عزیر بلوچ کی پہنچ ہو گئی۔ عزیر بلوچ نے کچھ قتل اپنی مرضی سے اور کچھ سیاسی شخصیات کی مرضی سے کیے۔ یہ سلسلہ اس قدر طویل ہوا کہ عزیر بلوچ کو بھی امن کمیٹی کا عہدہ مل گیا۔ عزیر بلوچ کو پولیس نے پہلے 2003 میں گرفتار کیا، پھر 2015 میں، لیکن عزیر بلوچ دونوں بار ہی اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے رہا ہوا۔ عزیر بلوچ کی تیسری گرفتاری 2016 میں ہوئی۔ جرائم کی دنیا کے بعد عزیر بلوچ پر دہشت گردی، ملک دشمن سرگرمیوں اور بلوچ علیحدگی پسند سمیت غیر ملکی خفیہ اداروں کی بھی معاونت کا الزام عائد کیا گیا۔ العزیزیہ اسٹیل ریفرنس میں نواز شریف کو سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کو انتظامی کمیٹی نے الزامات ثابت ہونے پر ان کو برطرف کیا۔ ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے ارشد ملک کو برطرف کرنے کی منظوری دی۔ جسٹس سردار احمد نعیم نے بطور انکوائری آفیسر ارشد ملک کو قصوروار قرار دیا۔ 6 جولائی 2019 پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، نائب صدر مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیوز جاری کی۔
जिन के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा दबाव पर सुनाई गई। 7 जुलाई को रजिस्ट्रार एहतसाब कोर्ट ने जज अरशद मलिक का तरदीदी बयान जारी किया कि उन पर बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई दबाव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा 16 जुलाई 2019 को वीडियो स्कैंडल केस की समाअत की। 16 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई शक नहीं कि जो जज ने कहा वो इंतहाई गैर मामूली बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी तो हाई कोर्ट में जेर समाअत केस पर असर पड़ेगा। 16 जुलाई को ही जज अरशद मलिक ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत FIA को दरख्वास्त दी, जिस पर FIA ने साइबर क्राइम की शिकों के तहत उनकी वीडियो बनाने के हवाले से मुकदमा दर्ज किया। 30 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक के वीडियो केस पर FIA को 3 हफ्तों में मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अगस्त को केस का फैसला सुनाया और कहा कि जज अरशद मलिक की 7 जुलाई की प्रेस रिलीज और 11 जुलाई का बयान हल्फी उनके खिलाफ फर्द जुर्म है। 14 सितंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने अरशद मलिक को OSD कर दिया, जिसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म दे दिया है। इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। आज का फैसला बेशक सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। मरियम नवाज फैसले ने नवाज शरीफ ही नहीं, आदिल के दामन पर लगा दाग धो दिया। इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को फाड़ फेंका जाए। अल्लाह का शुक्र जिसके हाथ देर है ना अंधेर। शेखुपुरा में खुला फाटक मौत का सामान बन गया। ट्रेन हादसे में एक ही खानदान के 20 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी हो गए। सिख खानदान पेशावर से ननकाना साहब फौतगी पर आया था। कोस्टर पेशावर से वापस जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के करीब ट्रेन से जा टकराई। आखिर कब तक लोग रेलवे इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे? हुकूमत की बेहिसी या इंतजामी नाअहली एक और खुला फाटक दर्जनों घरों में सफ़े मातम का बायस बन गया। शेखुपुरा के करीब फारूकाबाद यात्री रोड फाटक पर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची से लाहौर आ रही थी। हादसा फारूकाबाद और बहाली रेलवे स्टेशन के दरमियान उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने फाटक से पीछे कच्चे रास्ते से कोस्टर गुजारने की कोशिश की। कोस्टर में एक ही खानदान के 25 अफराद सवार थे। मौजूदा दौरे हुकूमत में ट्रेन हादसे के 100 वाकयात पेश आ चुके हैं। हर बार हुकाम रवायती जुमलेबाजी से काम चलाकर अवाम को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। चंद रोज गुजरने के बाद मामला दबा दिया जाता है। बदकिस्मती से आज तक न तो हादसे के जिम्मेदारान का तयन हो सका और न ही सजाएं दी गयी। शेखुपुरा हादसे में भी कीमती इंसानी जानें तो जाया हो गयी। वजीर रेलवे ने नोटिस भी ले लिया, लेकिन क्या इस बार कोई मौसर और हतमी इकदाम उठाए जाएंगे या हमेशा की तरह महज आंसू बहाकर अगले सानिये का इंतजार किया जाएगा? हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी रेलवे हादसात नहीं रुक सके हैं। वक्त का पहिया बदला, ट्रैक बदले, ना बदले तो रेलवे हुकाम के अंदाज। शेख रशीद के दौर में अब तक 100 से ज्यादा हादसा रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन फिर भी रेलवे फाटक का निजाम बेहतर नहीं हो सका है। आदाद शुमार के मुताबिक शेख रशीद के वजारत रेलवे का कलमदान संभालने के बाद से अब तक 100 से ज्यादा मुख्तलिफ नौइयत के रेलवे हादसा पेश आ चुके हैं। रेलवे के खुले फाटक भी हादसा में इजाफे का मौजब बनते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में भी इन खुले फाटकों की वजह से कई खूनी हादसा रूनुमा हुए, लेकिन इनकी तादाद सिर्फ 14 रही। मौजूदा दौर में इन हादसा में यकदम इजाफा हुआ, जिन्होंने सैकड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए। अवाम की तरफ से बारहा महकमा रेलवे से अपील की गई कि वो रेलवे फाटकों का निजाम बेहतर बनाने के साथ खुले फाटकों पर गेट लगाने के लिए भी इंतजामात करें, लेकिन अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। ये महकमा रेलवे की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए खुले फाटकों पर गेट नस्ब करे और उन्हें मुकर्ररा वक्त पर खोलने और बंद करने वाले अमले की तैनाती अमल में लाई जाए, ताकि ऐसे खूनी हादसा में कमी लाई जा सके। अटक के इलाके फतेह जंग में कुएं की सफाई के दौरान गैस भर जाने से 6 अफराद चल बसे। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक होने पर इलाके की फिजा सोगवार है। जरा सी लापरवाही ने घर उजाड़ दिया। माँ बाप से बुढ़ापे का सहारा, बहनों से उनके वीर छिन गए। एक लम्हे में हंसता बसता घर मातम कदे में तब्दील हो गया। घर में कुएं की सफाई के लिए उतरने वालों को क्या खबर थी कि वापसी मुमकिन न होगी। यही कह के निकले थे कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन घर वालों को सारी उम्र का इंतजार सौंप गए। फतेह जंग के नवाही इलाके ढोक मलियार में कुएं की सफाई के लिए उतरने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद गैस भर जाने से जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों में 3 भाई, 2 कजन और चचा शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने लाशों को कुएं से निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हुकूमत की तमाम तर हिकमत अमली बेसूद साबित हुई, कोशिशें भी धरी की धरी रह गईं। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIE की परवाजों की मुअत्तली का इतलाक आज से होगा।
तर्जमान PIA के मुताबिक यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपीय ममालिक की परवाजों के लिए PIA का इजाजतनामा 6 माह के लिए मुअत्तल किया है, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। तर्जमान का कहना था कि आज रात से PIA की यूरोप के लिए तमाम परवाजों को मनसूख कर दिया जाएगा, लिहाजा जिन मुसाफिरों की बुकिंग है वो चाहें तो बुकिंग आगे करवाएं या रिफंड हासिल कर सकते हैं। तर्जमान ने बताया कि जाली लाइसेंस पर पायलट्स की परवाजें ऑपरेट करने पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। यूरोपीय यूनियन ने हुकूमत पाकिस्तान से पायलट्स की लिस्ट तलब की है। तर्जमान कौमी एयरलाइन ने मजीद कहा कि यूरोपियन फजाई सेफ्टी के साथ राब्ते में हैं और खदशात दूर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती और इंतजामिया के इकदाम के बाइस मुअत्तली जल्द खत्म होने की उम्मीद है। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA में पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने पर 30 जून को PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाजों को मुअत्तल किया था। तहम हुकूमती काविशों से पाबंदी को आर्जी मुअत्तल करते हुए 3 जुलाई तक परवाजें चलाने की इजाजत दी गई है, जो आज रात खत्म हो रही है। PIA और सिविल एविएशन की तबाही से मुतालिक वफाकी वजीर अली जैदी के इल्जामात से मुतालिक मुर्तजा वहाब का कहना है कि PTI की हुकूमत का हर वजीर अपनी वजारत को छोड़कर PIA पर बात कर रहा है। अली जैदी अपने महकमे से मुतालिक जवाब देने से कासिर हैं, वो PIA पर बोलने के बजाय अपनी वजारत का हाल दुरुस्त करें। रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात की, सिविल एविएशन के हवाले से बात की। इस हुकूमत की खास बात है कि जिस शख्स का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। एविएशन मिनिस्टर आके बात करें तो चलो समझ आता है PIA के लिए, सिविल एविएशन के लिए। अली जैदी साहब का क्या ताल्लुक है? PIA को एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है, और जो लोग अपनी पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं चला पा रहे वो कहते हैं 6 महीने में हम PIA बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो एक वजीर ने पहले कोई बयान दे दिया जिसका खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। PIA का जहाज जो कि पाकिस्तान का फखर है, उस PIA को मुख्तलिफ ममालिक में जगहसाई का सामना है। अब हमारे पायलट्स जिनको इज्जत की निगाह से दुनिया भर में देखा जाता है, आज उनके ऊपर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सवाल पूछते हैं तो आप वही कि हम 6 महीने में ठीक कर देंगे, 1 साल में ठीक कर देंगे। जाली पायलटों को किसने और कब भर्ती किया? वफाकी वजीर अली जैदी ने फहरिस्त पेश कर दी। 236 पायलट्स को PP और नून लीग के अदवार में भर्ती किया गया। 2010 में 8, 2011 में 20, 2012 में 28 पायलट्स भर्ती किए गए, ऐसा कहा गया है अली जैदी की जानिब से। 2016 में 39, 2017 में 46 पायलट भर्ती हुए। मुसाफिरों का तहफ्फुज पहली तरजीह, तमाम पायलट्स मुअत्तल हैं। तमाम मुलविस अफराद को कड़ी सजा दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से एहतसाब के बयानिए और महंगाई में कमी के दावों ने आवाम को क्या दिया? चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया और फिर आटा माफिया पहले से बढ़कर सरगर्म हो गए। हुकूमती दावों, बयानिए और फिर बड़े बड़े दावों के बरक्स हालात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। अब वजीर आजम इमरान खान के दावों और तकरीरों को बेमानी समझा जाने लगा। हल्के खुदा का कहना है कि एहतसाब का नारा मुसलसल सुन रहे हैं, मगर हमें क्या मिला? आज जो हम देख रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत हर माफिया के सामने लेट गई है। चीनी माफिया के सामने, आटा माफिया के सामने, पेट्रोल माफिया के सामने। मैं सबसे बड़ा सपोर्टर था, वोट देने में, भाग दौड़ में हर तरह की ताउन मैंने किया है, लेकिन आज मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने किए इसको वोट दिया है। जिस तरह हम गुजारा करते हैं ये तो हमें पता है। वो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर एक भी बात उनकी सच साबित नहीं हुई।
ان کی جو پہلے کی تقریریں دیکھو، اسد عمر کی ہو گیا یا عمران خان کی ہو گیا، جتنے بھی ہو یا اس سے پہلے جس کی حکومت تھی، اپوزیشن میں جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. احتساب اگر ہوتا تو سب کے لیے ہونا چاہیے، خواہ حکومتی ہو یا اپوزیشن ہو. خان صاحب اپنے کیے ہوئے وعدے بھول گئے ہیں. جو وعدے کیے تھے کہ پیٹرول مافیا، چینی مافیا کو پکڑوں گا، اب چینی 70 روپے سے 90 روپے کلو ہو گئی ہے اور آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے. ماہرین اور عوامی حلقے کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے مگر دعووں سے نہیں، عمل سے. پیٹرول سستا ہوا تو شہریوں کے لیے نایاب کر دیا گیا، قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا تو دستیابی عام ہو گئی. چینی کی قیمتوں پر نوٹس لیا گیا تو قیمتیں 70 سے 90 روپے فی کلو پر پہنچ گئیں. آٹا بحران کا مسئلہ ایوانوں تک پہنچا تو قیمتوں میں 300 روپے تک اضافہ کر دیا گیا. ایسا احتساب نہیں چاہیے. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. رینٹل پارک کیس میں راجہ پرویز اشرف کی بریت کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ احتساب عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسلم کھوکر. سعودی رینٹل پاور کیس میں راجہ پرویز اشرف اور دیگر ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج. نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی. نیب کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے فیصلہ کرتے ہوئے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، اس لیے 25 جون کے احتساب عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. ساہوار رینٹل پاور ریفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ شریک ملزمان میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، سابق ایم ڈی پیپکو طاہر بشارت چیمہ، سابق سیکرٹری پانی اور بجلی شاہد رفیع اور دیگر شامل تھے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت 10 ملزمان کو نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت بری کیا گیا تھا. محمد اسلم کھوکر، سچ نیوز، اسلام آباد. سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نیب لاہور میں پیش ہو گئے. کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں خواجہ آصف 1.5 گھنٹے تک نیب آفس میں موجود رہے. رپورٹ کر رہے ہیں نبیل نقوی. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نیب آفس میں پیش ہوئے اور نیب کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیے، ساتھ ہی متعلقہ دستاویزات بھی مہیا کی. نیب کی 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے خواجہ آصف سے 1.5 گھنٹے تک تحقیقات کی. نیب کی جانب سے سابق وفاقی وزیر کو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں طلب کیا گیا تھا. نیب کی جانب سے ان پر الزامات لگائے گئے کہ خواجہ آصف نے اختیارات سے تجاوز کیا اور موجودہ زمین سے زیادہ زمین فروخت کی. خواجہ آصف نے سوسائٹی انتظامیہ سے مل کر 137 کنال اراضی غیر قانونی طور پر فروخت کی. نیب کی جانب سے سوالات کیے گئے کہ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کی گئی انویسٹمنٹ کے ذرائع کیا ہیں، بتایا جائے. سوسائٹی میں آپ نے اور اہل خانہ نے کتنی انویسٹمنٹ کی. آج سے پہلے نیب لاہور کی جانب سے خواجہ آصف کو 26 جون کو طلب کیا گیا تھا، مگر بجٹ سیشن میں مصروف ہونے کے باعث خواجہ آصف پیش نہیں ہو سکے. نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. پاکستان نے گلگت بلتستان میں انتخابات کے حوالے سے بھارت کے غلط بیانات کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی بیانات کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر پردہ پوشی نہیں کر سکتے. ہر محاذ پر ناکامی کے بعد مودی سرکار پاگل پن کا شکار ہے. اب کی بات گلگت بلتستان کے انتخابات پر پیٹ میں مروڑ شروع ہوا تو پاکستان نے 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے گلگت بلتستان میں انتخابات پر بھارتی بیانات کو یکسر مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر عائشہ فاروقی کہتی ہیں بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے زیر نگرانی فراڈ الیکشن کراتی رہی ہے. بھارت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ وہ گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرے. عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے. گلگت بلتستان الیکشن پر بھارتی بیانات کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر پردہ پوشی کی کوشش ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ سوپور میں بھارتی قابض فورسز نے 3 سالہ نواسے کے سامنے نہتے شہری کو قتل کر دیا. بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت تمام مقبوضہ علاقوں کو خالی کرے. 5 اگست 2019 کے بعد سے لاگو کردہ تمام سخت قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے. بھارت انسانی حقوق کی تنظیموں، غیر جانبدار مبصرین اور عالمی میڈیا کو مقبوضہ علاقے کا دورہ کرائے. بھارت کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے دے. کے الیکٹرک نے کراچی کے شہریوں پر ظلم کی انتہا کر دی. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ اوور بلنگ نے بھی شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین.
शहर कायद में कहीं एलानिया तो कहीं गैर एलानिया और बाज इलाकों में फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद किए जाने पर शहरी वैसे ही परेशान थे, तो सोने पर सुहागा के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के साथ साथ ओवर बिलिंग का तोहफा भी शहरियों के हाथों में थमा दिया। 25,000 रुपए का बिल आया। लाइट लोड शेडिंग 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कोई टाइमिंग नहीं है। एक मैसेज भेज देते हैं इंटरप्शन हो रही है, कनेक्शन कर रहे हैं, वो सारी वजह जो है। लेकिन बिल अगर पिछले महीने हमारा 8,000 रुपए का आया, इस महीने जो है 25,000 रुपए का बिल आया। इतना क्या कंज्यूम कर लिया। हालांकि अब लोड शेडिंग ज्यादा बढ़ गई है लेकिन बिजली फिर भी नहीं आ रही है। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से बिना रीडिंग चेक किए भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। समझ नहीं आता कि घर का गुजारा करें या बिल की अदायगी। बहुत परेशान है, समझ लो कि इलेक्ट्रिक ने पहले इतना परेशान नहीं किया जितना परेशान हो रहे हैं, बिलों के लिए भी, बिलिंग के लिए भी और लोड शेडिंग भी बहुत है। मेरा भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, 3,000, 2,500 बिल आ रहा था, अब जो है ना 50,000 का एक साथ बिल भेज दिया है। तो मैं तो परेशान हूँ। पहले नौकरियाँ नहीं है, लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है और क्ले इलेक्ट्रिक इतना बिल भेज रहे हैं और प्लस लाइटें तो रुक ही नहीं रही हैं, रातों को भी जा रही हैं, 2-2 बजे, 2:30 बजे भी जाती हैं। ओवर बिलिंग जो दिल जाता है बना के भेज देते हैं और उसके बाद उसकी करेक्शन कराते फिरो, और करेक्शन के अंदर ये वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने ड्यूज बाकी रखते हैं कि उस पर हमको आसानी ये देते हैं कि भाई इतनी हो जाएगी, और जो बना के भेजा उसमें कमी नहीं होती। शहरियों ने कहा कि बिजली ना होने से पानी के मसले का भी सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि बिला किसी तात्तुल के बिजली फराहम हो सके। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद एजाज। ये कोई कचरा कुंडी नहीं बल्कि ये मनाजिर हैं कराची के इलाके अजीजाबाद के, जहाँ की गलियों में कचरे के अनबाल लगे हुए नजर आते हैं। गलियों में मौजूद कचरे के ढेर ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरी कहते हैं बार बार मुताल्लिका इदारे में शिकायत दर्ज करा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पीछे कितना कचरा पड़ा हुआ है, सही है, बोल बोल के थक गए, वीडियो बना बना के भेज चुके हैं, हर चीज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कहने सुनने वाले ही नहीं है। यहाँ से गुजर होता है, यहाँ से हवा के साथ साथ बदबू आती है, कोई कहने वाला सुनने वाले ही नहीं है। शहरी कहते हैं कि कचरे के बाइस घरों में बैठना मुश्किल हो गया है। भाईजान हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पे कचरे की इतनी बदबू है, हम यहाँ रह नहीं पाते, हम यहाँ पे घूम नहीं पाते, यहाँ पे ये पार्क है, हम यहाँ खेल नहीं पाते सही से। देखें आपके सामने ये सारा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है और है ना, ये मकसद ये देखें ढेर लगा हुआ है कचरों का, इसकी इतनी बदबू वगैरह है और ये फिर हम खिड़कियां बंद करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इतनी बदबू होती है, इतनी बदबू, हर कोई यहाँ कचरा डाल के चला जाता है, ना कोई यहाँ पाबंदी लगाता है ना कुछ कि भाई ये इधर कचरा ना डालें। सड़कों पर मौजूद कचरे से इलाके में ताफुन फैल रहा है जबकि इससे कई बीमारियां भी फैलने का खदशा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इलाके से कचरे को साफ कराया जाए। कैमरामैन हसन रजा के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। कानूनी मवेशियां मंडियां लगने लगी। न्यू कराची थाने के हदूद में कायम ग्राउंड में गैर कानूनी मंडी लग गई। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी है। गैर कानूनी मंडी तो लग गई लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया है। शहरियों का कहना है कि वो हर साल इस ग्राउंड में मवेशी मंडी लगाते हैं। लाहौर में सील किए गए 7 इलाके आज रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। मुतासरा इलाकों में 1,000 स्मार्ट टेस्टिंग सैंपल्स करवाए गए। 10 रोज में अंदरून शहर 4 और गुलबर्ग से 5 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के बाद सूबाई हुकूमत ने कई इलाके डी सील करने का फैसला किया। DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन में भी केसेस की तादाद इंतहाई कम आई। कोरोना केसेस की तादाद में नुमाया कमी के बाईस इलाकों को मुकम्मल खोलने का फैसला हुआ। 24 जून को शहर के 7 बड़े इलाके मुकम्मल बंद करने पर इत्तेफाक किया गया था। हुकाम के मुताबिक केसेस की तादाद इंतहाई कम है। इलाके खोलने के बाद कारोबारी सरगर्मियां पीर से बहाल होंगी। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी शहरियों के लिए मुअस्सर साबित हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट टेस्ट सैंपलिंग जारी है। मजीद इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन करने बारे फैसला काबीना कमेटी करेगी। हुकाम ने शहरियों से एहतियात बरतने, साथ देने और गैर जरूरी घरों से बाहर न जाने की अपील की है।
पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर करीमपुरा बाजार को सील कर दिया गया है। ताहम सील होने के बाद भी चंद दुकानें खुली हुई हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाहिद। पेशावर में खवातीन को खरीदारी करना और बाजारों में रश लगाना महंगा पड़ गया। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के वस्त में कायम करीमपुरा बाजार समेत जंडा बाजार को सील कर दिया गया। मास्क तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि रोज छापे पै रहे थे तो अमल हो रहा था। उसके बावजूद भी फिर भी दुकानें बंद की क्योंकि ये तो बाजार सौदे की दुकान है ना। दुकानदार को ये कहीं कि यार अब आप 120 पे अमल करें, दुकानदार तो खुद कर रहे, लेकिन जितना रश इस बाजार से गुजर रहे, कई रास्ते हैं या तजावजात है, उनकी वजह से वो जब आए उन्होंने देखा कि इस बाजार में तो बहुत रश है और तजावजात का भी मसला था, इनकी वजह से हमारे बाजार को सील कर दिया गया। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील होने वाले बाजारों में दुकानदार कहते हैं कि चंद दुकानदार SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे, जिसकी सजा पूरे बाजार को मिली है। इसी वजह से बंद है कि सारे लोगों के रास्ते इधर ही है और अब हर एक दुकानदार तकरीबन 25 दुकानदारों ने मास्क पहने हुए हैं, 20 दुकानदारों ने नहीं पहने हुए हैं। इसके वजह से ये हमारी बाजार सील कर दी गई। पी के ऊपर सब ताजिर जो है तो अमल कर रहे थे। 2, 3, 4 दुकानों की सजा पूरे बाजार को दी गई है। अगर इंतजामिया बता दे कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस मिला हो या किसी किस्म की कोई वार्निंग मिली हो तो हम उसमें बिल्कुल जुर्मदार हैं। करीमपुरा बाजार सील होने के बावजूद भी शहरियों का रश लगा हुआ है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता रोज करीमपुरे बाजार को सील तो कर दिया गया, अलबत्ता आज भी बाजार की मुख्तलिफ दुकानें खुली हुई हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। सिंध के जिला थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस नौनिहालों की हलाकत का सिलसिला नहीं रुक सका। मजीद 3 कलियां मुरझा गईं। माई भागी के देश में मौत का रक्स जारी है, जिसके बायस कमसिन कलियां मुरझा रही हैं। थर की फिजाओं में तो जैसे मौत रस बस चुकी है। बच्चों की अमात के साथ साथ हुक्मरानों की बेहिसी भी जारी है। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद आज भी थर में 3 नई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। जून और जुलाई में ग़िज़ाई किल्लत से जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 68 हो गई। रवां साल ग़िज़ाई किल्लत से जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 380 है। रवां साल के पहले माह जनवरी में 77, फरवरी में 66, मार्च में 47, अप्रैल में 59 और मई में 63 बच्चे जाम बहक हुए। इसी तरह 2018 में 505 बच्चे भूख और अमराज की वजह से जाम बहक हुए। 2017 में भी 445, 2016 में 479, 2015 में 398 और 2014 में 326 बच्चे जान की बाजी हार गए। IG पंजाब शोएब दस्तगीर कहते हैं कि ऑपरेशनल गाड़ियों की मुरम्मत और बहाली के काम में कम खर्च बाला नशीन के उसूल को मद्देनजर रखा जाए। ऑपरेशनल सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए पुरानी गाड़ियों को जल्द अज जल्द तैयार करके ऑपरेशनल फ्लैट में शामिल किया जाए। IG पंजाब की जेर सदारत पंजाब पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विंग के मुतालिक इजलास में पुरानी गाड़ियों की मुरम्मत और बहाली के काम का जायजा लिया जाए। IG पंजाब का कहना था कि ऑपरेशनल गाड़ियों की मुरम्मत और बहाली के काम में कम खर्च बाला नशीन के उसूल को मद्देनजर रखा जाए। गाड़ियों की वर्किंग ठीक होने से पेट्रोलिंग, क्राइम फाइटिंग समेत दीगर फराइज की अंजामदही में मजीद बेहतरी आएगी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आ गया बराबर वाला उमर हॉस्पिटल से। देखो मैं कह रहा हूँ महीने भर तक उसके घर से दूर रहेंगे, गेट के पास भी नहीं जाएंगे और सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। ये तीसरा कप किसके लिए? उमर के लिए। क्या? उसे अकेले रहने के लिए कहा है, अकेला छोड़ने के लिए नहीं। हम दूर रहकर भी अपनापन दिखा सकते हैं। सुप्रीम, जायका अपनेपन का। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। कारकर्दगी बेमिसाल। सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, I've no need of flash. With
because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ कैनन होम अप्लायंसेज चले साल साल, कारकर्दगी बेमिसाल। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। हुकूमत प्राइवेट स्कूल माफिया के सामने बेबस। लाहौर में प्राइवेट स्कूल मालिकान की हरधर्मियां बरकरार। लो क्लास स्कूल ने बगैर वजह 180 असातिज़ा को निकाल दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन नकवी से। ज़ैन, क्या हुकूमत प्राइवेट स्कूल माफिया के सामने बेबस है? जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल मालिकान की हरदर्मियां बरकरार हैं और वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज ने वादे तौर पर अहकाम जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि कोई भी स्कूल जो है वो बिला वजह अपने असातिज़ा को इन कोरोना वायरस के हालात में जो है वो अपने स्कूल से बरतरफ नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि लोकास स्कूल एक जो लाहौर में ब्रांच है उसके टोटल 180 असातिज़ा को जो है वो निकाल दिया गया है। और न सिर्फ असातिज़ा बल्कि उनके साथ साथ एडमिन स्टाफ और जो स्कूल में सफाई करने वाला अमला है, खाकरोब का अमला है, उसको भी निकाल दिया। मुकम्मल तौर पे मजबूरी तौर पे जो है वो 200 मुलाजमीन को निकाल दिया गया है और लुकास स्कूल ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। असातिज़ा का कहना था कि इस सूरत हाल में स्कूल पहले ही बंद है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से जो है अपना गुजर बसर करें, लेकिन उन हालात के बावजूद जो है वो बगैर किसी वजह के और बगैर किसी नोटिस के जो है उन्हें निकाल दिया गया है। अब तो हुकूमत की स्कूल की जानिब से है वो बाकायदा तौर पर 1 माह का वक्त दिया गया है और 1 माह के बाद ये तमाम जो असातिज़ा हैं इनको स्कूल से बरतरफ कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब देखा जाए तो न सिर्फ ये स्कूल, इसके अलावा भी दीगर कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी शिकायत मौसूल हो रही है कि उन्होंने अपने असातिज़ा को जो है वो बरतरफ किया है और जो हुकूमत है इस वक्त वो प्राइवेट स्कूल माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है, क्योंकि वाज़ेह अहकाम जारी करने के बावजूद जो है इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि असातिज़ा जो है वो खासे परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज जो है वो इस वाक़े का नोटिस लें और उन्हें इंसाफ दिलवाएं। जी, वाज़ेह अहकाम जारी होने के बावजूद हुकूमत प्राइवेट स्कूल माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का जज्बा कमजोर क्यों पड़ने लगा? इंतजामिया का रवैया गैर संजीदा। सरीना चौक पर लगा कश्मीर क्लॉक बंद। क्लॉक पर कश्मीर में कर्फ्यू का वक्त जाहिर होता था। इंतजामिया की गफलत पर हुक्काम खामोश क्यों है? कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का जज्बा कमजोर क्यों पड़ने लगा है? इंतजामिया का रवैया गैर संजीदा है। सरीना चौक पर लगा कश्मीर क्लॉक बंद है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ओन शराजी से। ओन शराजी, इंतजामिया की गफलत पर हुक्काम खामोश क्यों है? जी देखिए, बिल्कुल ये सरीना चौक जो रेड जोन है इसके करीब ही डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, फॉरेन ऑफिस का दफ्तर है और यहाँ पे तमाम जितने सफीर हैं सुबह जब अपने ऑफिस में जाते हैं, सफारतखानों में जाते हैं और दीगर UN के लोगों की बात करें तो इस चौक से उनका अक्सर गुजर औकात होता है। तो यहाँ पे एक क्लाक लगाया गया था 5 जो है अगस्त से, पहले दिन उस दिन से जिस दिन कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था, लॉकडाउन किया गया था और इस पे दिन और उसके साथ साथ घंटे और इवन सेकंड भी मेंशन होते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर महीने होने लग पड़े। तो अब पिछले 2 दिन से ये क्लास बंद है और ये क्लास उसी अंदाज में बेइज्जती को जाहिर कर रहा है जो कश्मीर के मामले पे हम मुख्तलिफ मौकों पे देख रहे हैं। तो अब ये इंतजामिया की गैर संजीदगी जो है वो वादे नजर आ रही है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया की इतनी गैर संजीदा है। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का जो जज्बा है वो भी कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों से हमारी यहाँ पे बात हुई है लोगों ने इस पे काफी जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पे इसको एक जो निशानी है ये एहतजाज का जरिया है, इसको फौरी तौर पे जो है इख्तिलाफ को ठीक करवाया।
शुक्रिया ओन शराजी। खालिस्तान के रेफरेंडम ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। कश्मीरियों के बाद सिख भी मोदी के निशाने पर आ गए। भारतीय एजेंसी ने सिखों के खिलाफ कई मंसूबे शुरू कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं ओन शराजी। कश्मीरियों के बाद सिख भी मोदी सरकार के निशाने पर हैं। बदनाम जमाना भारतीय एजेंसी राह ने सिखों के खिलाफ कई मंसूबे शुरू कर दिए। भारतीय पंजाब में सिखों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए इकदामात को हतमी शक्ल देकर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। कुछ अरसा में मरकज की जानब से 51,000 सिखों के पंजाब से दीगर इलाकों में तबादले भी कर दिए गए। तब्दील होने वाले अफसरान को हदायत की गई है कि वो अपनी फैमिलीज को भी ट्रांसफर शुदा स्टेशन पर ले जाएं। दूसरी जानब इंतहा पसंद RSS के लोगों को पंजाब में बसाने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। भारतीय एजेंसी सिख नौजवानों को नशे का आदी भी बनाने में मसरूफ है और सोचे समझे मंसूबे के तहत मंशियात की स्मगलिंग का इल्जाम सरहद पार लगा दिया जाता है। ये तमाम हिकमत अमली भारतीय खुफिया एजेंसी राह की जानब से तैयार की गई है। मकबूजा कश्मीर में नन्हे बच्चे के सामने नाना को शहीद करने के वाक़े के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई। मकबूजा कश्मीर में 3 साल के नन्हे बच्चे के सामने नाना को शहीद करने के खिलाफ करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन उसवा आफ्ताब की जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मकबूजा कश्मीर में जालिम भारतीय फौज ने 3 साला नन्हे बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद कर दिया। इस बेरहमाना वाक़े पर दुनिया की कश्मीरियों की हालत इज़हार पर बेहिसी काबिल मज़म्मत है। इस शर्मनाक वाक़े पर शर्मिंदा नहीं है। करारदाद में ये मुतालबा किया गया, मकबूजा कश्मीर में जालिम भारतीय फौज ने 3 साला नन्हे बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जाएगा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। महकमा मौसमियात ने फिर बारिशों की पेशगोई कर दी। आज रात से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जम्मू, श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। रावलपिंडी, लाहौर, झेलम, अटक, चकवाल, गुजरांवाला और गुजरात में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर और भावलनगर में आंधी चलेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी मौसम खुश्क रहेगा, जबकि श्रीनगर, बारामूला और जम्मू में भी इतवार से बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौजूदाड़ों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची वाले हो जाएं होशियार, महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून की पहली बारिश 6 जुलाई को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहजादा मोइन तफसीलात बताएंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 6 से 8 जुलाई की सुबह तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है, जबकि गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का आगाज 6 जुलाई की रात से हो सकता है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक 6 जुलाई की सुबह मानसून सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल हो सकता है, जिससे कराची, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और मीरपुर खास में गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। श्रीलंकन वजारत खेल ने ICC वर्ल्ड कप पर लगाए गए अपने तमाम इल्जामात वापस ले लिए। श्रीलंकन हुकाम की जानिब से जारी तहकीकात को भी बंद कर दिया गया। श्रीलंकन वजारत खेल की जानिब से चंद रोज कबल ICC वर्ल्ड 2011 में मैच फिक्सिंग की तहकीकात अचानक बंद कर दी गयी। हुकाम का कहना है कि इल्जामात लगाने वाले साबिक वजीर खेल इस जमन में कोई शवाहिद तहकीकाती कमेटी के हवाले नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उन तहकीकात को जारी रखना बेमायनी है। मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने तहकीकात को बंद कर दिया है। तहकीकाती टीम के सरबराह का कहना था कि बगैर शवाहिद के इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। हमने क्रिकेटर से भी पूछगछ की थी, जिसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट वजारत को भेजवा दी गई है, जिसमें तहकीकात बंद करने की इस्तदा की गई है। वर्ल्ड कार रैली चैंपियनशिप की ई सीरीज के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आलमी तंजीम ने तुर्क रैली का ट्रैक रिव्यू रिलीज किया है, जिसमें मुश्किल तरीन ट्रैक पर गाड़ियों को मंजिल की जानिब बढ़ते दिखाया गया है। रेस के तमाम मुकाबले इंटरनेट पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख कई नामवर क्रिकेटर से भरी पड़ी है। उनमें एक नाम वसीम राजा का भी है,
जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ लाजवाब कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। वसीम राजा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 छक्के आज भी शायकीन की यादों में जिंदा हैं। This time he goes in the mid-wicket area, very high, but clearing the boundary. A good hit. That's a pretty long boundary out there. And a good piece of timing from Wasim Raja. Wasim Raja using his feet and lofting into the gap, and over the boundary rope it goes, and that's exactly what Pakistan need. Well, Pakistan have calculated the situation out at the moment, and what they need is exactly what comes off the bat with Wasim Raja. They must try and take some toll of these middle overs now, particularly from the bowling of Kepler Wessels, and an excellent shot. Richards to Wasim Raja is the last ball of Vivian Richards over. The ball hit high down the ground, and that's probably going to be 6. Just over the boundary. Yes, well, Roger doesn't mind taking the challenge. There's a man placed on that rope, and he cleared it by a yard. करंटीना और लॉकडाउन में फंसे क्रिकेटर्स की दिलचस्प गुफ्तगू की वीडियो जारी। पीसीबी की तरफ से जारी करदा वीडियोज में हसन अली ने पूछा कि लॉकडाउन में शॉपिंग कैसे कर रहे हैं, जिस पर फहीम अशरफ का जवाब था कि शॉपिंग करने नहीं जा सकते, ऑनलाइन चीजें मंगवा रहा हूं। ये भी बताया कि ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस के अलावा होटल में स्नूकर समेत दीगर इंडोर गेम्स खेल रहे हैं। अगर वो बाहर नहीं जाने देंगे तो फिर तुम्हारी शॉपिंग तो ख्याल हो पाएगी। मैं धीरे ऑनलाइन कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ऑनलाइन है, ऑनलाइन आ रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन आ जाएगी। अच्छा चलो, लेकिन दो को हफ्ते देख लेना, प्लीज सेंड करना। जरूर 2 को हफ्ते देख लिया अंदर और की सीन है। अच्छा हाँ, चलो अपने आप को बहुत ख्याल से रखो, और लग रहा है कि आप लोग अपनी टेक केयर कर रहे हो, जैसे इसी भी आप लोगों की टेक केयर कर रहा है। वेरी नाइस कि आप लोगों को वो एक प्रॉपर माहौल में रख रहे हैं। उस तरह थोड़ा मुश्किल तो होगा फहीम के, जैसे आप लोग बाहर नहीं, जैसे हम लोग बाहर जाते थे और जैसे प्लेयर्स के साथ बाहर जाना है, क्योंकि एक रूम में रह रहा है कि तो बंदा बोर हो जाता है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा खुद को देखना पड़ेगा। उकाड़ा पुलिस अफसर की दरिंदगी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। शादी से इनकार पर नशे में धुत एसएचओ का लड़की पर तशद्दुद, डीपीओ का नोटिस, एसएचओ को बरतरफ कर दिया। आरपीओ साहिवाल के भी बाप को इंसाफ की यकीन दहानी। उकाड़ा पुलिस अफसर की दरिंदगी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और शादी से इनकार करने पर नशे में धुत एसएचओ ने लड़की पर बदतरीन तशद्दुद किया। डीपीओ ने नोटिस लिया और एसएचओ को बरतरफ कर दिया। आरपीओ साहिवाल की जानिब से भी बाप को इंसाफ की यकीन दहानियां करवाई गई हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।